Meena, a young adult female, was admitted to the hospital with intense headache, abdominal discomfort for the past 5 days. She had also developed fever, and this fever is of remittent type with step ladder fashion. The fever is of remittent type with gradual rise in a step ladder fashion. On examination, she was toxic with temperature of 101 degree Fahrenheit. Tongue was coated and mild splenomegaly was present. What is the probable etiological diagnosis? So these clinical manifestations, these symptoms are suggestive of enteric fever. Enteric fever is caused by typhoidal salmonella, which includes S. typhi, S. paratyphi A, B, and C. Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, B, and C. These all are typhoidal salmonella, which causes enteric fever. See, and the incubation period is 10 to 14 days. It is named enteric because of the mode of transmission, because of enteric route of transmission. Okay, incubation period is 10 to 14 days, and the manifestations are extraintestinal. Okay, it is known as enteric fever, but the manifestations are mainly extraintestinal. First, there is fever. So the fever will be in step ladder pattern. It will be of remittent type. ठीक है, मतलब फीवर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, विल अचीव इट स्पाइक, फिर धीरे फॉल भी करेगा, बट इट विल नॉट कम टू नॉर्मल. सो ये जो फीवर होता है, दिस इज इन स्टेप लैडर पैटर्न. Other symptoms are headache, chills, cough, sweating, myalgia, and arthralgia. Rashes are formed, which are known as rose spots. These rashes are salmon in colored. These are salmon colored, and maculopapular rashes are found on the trunk and chest. And this is seen in the एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में ये रोज स्पॉट्स दिखते हैं. ठीक है, मैक्यूलो पैपुलर रैशेस दिखते हैं विच आर सालमन कलर्ड, और ये ट्रंक और चेस्ट पे दिखते हैं. अर्ली इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस आर एब्डोमिनल पेन with nausea, vomiting, and anorexia. Other important signs are hepatosplenomegaly, epistaxis, relative bradycardia. कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये थर्ड से फोर्थ वीक में दिखेंगे. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और इंटेस्टाइनल परफोरेशन. गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड इंटेस्टाइनल परफोरेशंस आर द कॉम्प्लिकेशंस. न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस भी दिख सकता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, सेरेबेलर एटैक्सिया, न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स विच आर डिस्क्राइब्ड एज मटरिंग डिलीरियम और कोमा विजिल. ठीक है, तो मटरिंग डिलीरियम और कोमा विजिल होता है, सच एज पैरानोइड साइकोसिस, hysteria, delirium, and aggressive behavior. Let's see the pathogenesis of enteric fever. Route of transmission is oral route. Okay, it is because of the ingestion of contaminated food and water. So contaminated food and water के ingestion से enteric fever होता है. The infective dose is 10 to the power 3 to 10 to the power 6, and the infective dose of salmonella is higher than that of shigella. साल्मोनेला का ज़्यादा होता है शिजेला से. इट इज़ 10 to the power 3 to 10 to the power 6. The risk factors are the conditions that will decrease stomach acidity and intestinal integrity. तो जिन भी कंडीशन से स्टमक एसिडिटी कम होता है या इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी कम होता है, तो इनके कारण एंटेरिक फीवर होने का रिस्क रहता है. ठीक है, तो किन कंडीशंस में स्टमक एसिडिटी कम होता है? लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, एंटी एसिड के इंजेक्शन के कारण, एक्लोरहाइड्रिया और प्रायर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस. इन सब के कारण स्टमक का जो एसिडिटी है वो कम होगा. Decrease in intestinal integrity is seen in IBDs, that is inflammatory bowel diseases, prior GIT surgeries, and suppression of the intestinal flora by antibiotics.
तो रिस्क फैक्टर्स में वो कंडीशंस हैं जिनमें स्टमक एसिडिटी और इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी ये दोनों डिक्रीज होता है. देन दिस बैक्टीरिया नाउ इट गोज इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोज इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के एपिथेलियल सेल्स में इसका एंट्री होगा, दैट इज़ द एम सेल्स. ठीक है, एंड दिस एंट्री to the epithelial cell is mediated by a process known as bacteria mediated endocytosis. तो साल्मोनेला जो है वो एपिथेलियल सेल्स में एंटर करते हैं विच आर द एम सेल्स. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. सो एंट्री थ्रू एपिथेलियल सेल्स एम सेल्स थ्रू बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. फिर ये एपिथेलियम से सब म्यूकोजा में जाते हैं और सब म्यूकोजा में इनका फैगोसाइटोसिस होता है. साल्मोनेला का फैगोसाइटोसिस होता है एंड दे एंटर द मैक्रोफेजेस. तो पहले वो एपिथेलियम में जाएंगे. एपिथेलियम में किस प्रोसेस से जाते हैं? बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से. फिर वो एपिथेलियम को क्रॉस करते हैं, सब म्यूकोजा में जाते हैं जहाँ पे इन बैक्टीरियाज का फैगोसाइटोसिस होता है मैक्रोफेजेस में. फिर ये जो एस टाइफी है ये मैक्रोफेज के सरफेस पे कुछ ऑल्टरेशंस कर देंगे. इट विल इंड्यूस ऑल्टरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मैक्रोफेज, जिससे ये जो एस टाइफी है दे आर नो लॉन्गर ससेप्टेबल टू द लाइसोसोमल एंजाइम्स. ठीक है, ताकि ये जो मैक्रोफेज के लाइसोसोमल एंजाइम्स है डिस्ट्रॉय ना हो सके. एंड देन यहाँ से इसका लिम्फैटिक स्प्रेड होता है. इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. साल्मोनेला मैक्रोफेज में गया, अब इन मैक्रोफेजेस का लिम्फैटिक्स से स्प्रेड होता है एंड दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम. दिस इज़ नोन एज ट्रांजिएंट प्राइमरी बैक्टीरियमिया. ठीक है, वो मैक्रोफेजेस थे मैक्रोफेजेस से वो लिम्फैटिक्स के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे. And then these bacilli disseminate through the reticuloendothelial tissues. Reticuloendothelial tissues में liver, spleen, lymph node और bone marrow आता है. ठीक है, reticuloendothelial system में 4 organs है, that is liver, spleen, lymph node and bone marrow. और इनके अलावा और भी ऑर्गन्स में जाते हैं ये, जैसे कि गॉल ब्लैडर, किडनी और लंग्स. ठीक है, और यहाँ इन ऑर्गन्स में इनका फर्दर मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो प्राइमरी बैक्टीरियमिया कब था? जब वो मैक्रोफेजेस में थे और लिम्फैटिक्स के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में आ गए थे. ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद वो ऑर्गन्स में डिपोजिट हो जाएंगे और जब इन सीडेड ऑर्गन्स से ये स्प्रेड होंगे देन दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी बैक्टीरियमिया. तो ये सेकेंडरी बैक्टीरियमिया ऑकर्स फ्रॉम द सीडेड ऑर्गन, जिसके कारण इट लीड्स टू द ऑनसेट ऑफ द क्लिनिकल डिजीज़. ट्रीटमेंट ऑफ एंटेरिक फीवर. तो एंटेरिक फीवर का कुछ कॉम्प्लिकेशंस था, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस. तो अगर इन सीवियर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, मोर्टालिटी को रिड्यूस करना है, देन वी नीड द प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक. ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट होता है इट विल डिपेंड ऑन द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द स्ट्रेन. जो करेंट रिकमेंडेड ड्रग है फॉर एम्पायरिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ 3rd जनरेशन cephalosporin ceftriaxone. Ceftriaxone is the drug of choice for empirical treatment. ठीक है, ceftriaxone it is the drug of choice for empirical treatment. ceftriaxone को IV देते हैं. इसका ऑल्टरनेटिव है एजिथ्रोमाइसिन. ठीक है, इसका एडवांटेज है कि इसको ओरली दे सकते हैं. सेफ्ट्रायोक्सोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस. इसका ऑल्टरनेटिव ड्रग है एजिथ्रोमाइसिन. एजिथ्रोमाइसिन का एडवांटेज ये है कि इसको ओरली दे सकते हैं. और फ्लूरोक्यूनोलॉन्स को तभी देते हैं जब ये ससेप्टेबल होते हैं. ठीक है, फ्लूरोक्यूनोलॉन्स को एम्पायरिकली नहीं देना चाहिए. फ्लूरोक्यूनोलॉन्स को तभी देंगे व्हेन इट इज़ फाउंड ससेप्टेबल. बाकी कैरियर्स का ट्रीटमेंट के लिए एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड. ठीक है, कैरियर्स के ट्रीटमेंट के लिए एमॉक्सिसिलिन या एम्पिसिलिन प्लस प्रोबेनिसिड. वैक्सीन फॉर एंटेरिक फीवर. जो इम्यूनाइजेशन है इट विल प्रोवाइड शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन. तो इनको किन सिचुएशंस में देना रहता है? इन केस ऑफ ट्रैवलर्स विच आर गोइंग टू एंडेमिक एरियाज, for people who attend melas and yatras,
household contacts, people who are at increased risk, that is school children's, people living in endemic area, it's optional. ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन जो है एंटेरिक फीवर का, ये बहुत शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये किन लोगों को देना चाहिए? पीपल हु आर ट्रैवलिंग टू द एंडेमिक एरियाज, people who are attending melas and yatras, household contacts, and people who are at high risk, that is school children and people living in endemic area। तो अभी करेंटली टाइफॉइड फीवर के दो वैक्सीन्स हैं। ठीक है, पहला इज वी आई एंटीजन कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, दैट इज VICPS वैक्सीन। पहला वैक्सीन इज VI कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। इसमें प्यूरिफाइड VI कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन है। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ प्यूरिफाइड VI कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड एंटीजन। ये जो VICPS है, इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 2 years एंड बूस्टर इज गिवन एवरी 2 years, एंड दिस विल बी गिवन ओनली आफ्टर 2 years ऑफ एज। ये बच्चों में नहीं देते क्योंकि ये बहुत poorly immunogenic है, so it's not given in children who are less than 2 years of age। Then the next vaccine which is used currently is Typhoral. Typhoral is a oral live attenuated S. typhi TY21A vaccine। Typhoral, it is a stable live attenuated mutant of S. typhi strain TY21A। Okay, so the first is VICPS vaccine, and then Typhoral, which is a oral live attenuated vaccine, and the strain is TY21A। Then parenteral TAB vaccine. This is not used now. This is no longer used. This was a heat killed whole cell vaccine, but parenteral TAB vaccine is not used now because of its significant side effects।